Just I am defining the differences between global and local variable. The first difference is local variable is only visible inside the block in which it is declared. मतलब हुआ कि if a variable is declared inside a program, प्रोग्राम के अंदर में डिक्लेयर है, it is not declared inside any of the block of any of the function. Okay, it is declared outside the all the functions, but it is inside the program. So that will be local for that particular program. मतलब जैसे जितने प्रोग्राम के अंदर में वो एक्सेसिबल होगा, प्रोग्राम के बाहर में दूसरा प्रोग्राम अगर चाहे कि उस वेरिएबल को एक्सेस करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, इन ग्लोबल वेरिएबल this variable is visible inside every block in the program. That means a variable which is declared inside the program, and if that program is having different functions, दो तीन functions हमने बना रखे हैं, ठीक है, तो that must be visible and accessible inside those functions also, as well as in the program. That's why it is called global variable. ठीक है. Then next one is lifetime. The local variable is inside the block only. That means memory of local variable becomes free by as the function or the block is getting over. That means the local variable lifetime is inside the block only. जिस ब्लॉक के अंदर में हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, से फॉर एग्जांपल वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, तो उसकी लाइफ टाइम मतलब वो अवेलेबल कब तक रहेगा, जब तक कि वो फंक्शन अवेलेबल है. जैसे ही फंक्शन ओवर होगा, उसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है, दैट मेमोरी विल बी डीएलोकेटेड एंड दैट विल बिकम फ्री एज द फंक्शन इज गेटिंग ओवर. फंक्शन जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग खत्म होती है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था फंक्शन कैसे कॉल होता है और कैसे खत्म होता है. ठीक है, तो खत्म होने के बाद में जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं उनके लिए मेमोरी हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, रुका हुआ है, यूज किया हुआ है, दैट विल बी फ्री फ्रॉम द वेरिएबल. ओके, उस वो रीयूजेबल स्टेट में आ जाएंगे, वहां से वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है. बट हियर global variable lifetime remain till the program.
when the program is over, when the program is over, the memory allocated by for the memory allocated for the variables are becoming free. That means ग्लोबल वेरिएबल तब डिस्ट्रॉय होते हैं जब आपका प्रोग्राम एंड होता है, और लोकल वेरिएबल तब डिस्ट्रॉय होते हैं जब वो ब्लॉक आपका ओवर होता है, देन ओनली दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. It is visible. The local variable is only visible inside the block where it is defined. If the local variable is defined inside a function, then that will only visible inside that particular function only. And global variable will be visible inside the whole program. It will be visible inside any of the function within the program. और लाइफ टाइम का मतलब होता है when it will be destroyed, when it will be created and when it will be destroyed. लोकल वेरिएबल जब फंक्शन शुरू होता है तो वो क्रिएट होता है, और जब फंक्शन खत्म होता है तो वो डिस्ट्रॉय होता है. ग्लोबल वेरिएबल जब फंक्शन शुरू होता है, जब आपका प्रोग्राम चालू होता है, then only they are getting declared according to the declaration of the variables, and they will remain till the program is not getting over. That is the difference between local variable and global variable. I hope you are clear about that. If you are having any problem, you can intimate me using WhatsApp. Thank you. Next is, I am going to give you a question on functions, and I hope all of you will try it and you send me the answer. One question you have to do is, in that question, in that program, you are going to give multiple options to the user. Multi-option program you are going to create. Say for example, one, when the program will start, you will take the choice from the user by showing some options. जैसे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, different types of operators are there, some mathematical functions are also there, mathematical operations are there. तो सबके लिए एक प्रोग्राम बनाना है आपको, जिसमें कि यूजर के चॉइस के हिसाब से जो वो करना चाहता है. से फॉर एग्जांपल द यूजर वांट्स टू फाइंड द पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, तो उसको ऑप्शन डालना पड़ेगा. आपने पैलिंड्रोम नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 1 4 एडिशन, 2 4 multiplication, 3 4 subtraction, like that you have given the palindrome number option also, ठीक है. अगर वो ऑप्शन डालता है तो फिर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, and using that function will be called, and that function is going to find that a number entered is palindrome or not. So similarly you have to make a program, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. मेनू मतलब ऑप्शंस आपको देने हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू हैव टू डू द वर्क. अब जितने भी काम करेंगे उस सब के लिए आपको फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, एंड पूरे के पूरे फंक्शंस बनाने हैं. अगर आप मेनू के अंदर में फिर से सब मेनू अगर आपको दिखाना है, ठीक है, मेनू के अंदर में सब मेनू दिखाना है. से फॉर एग्जांपल आपने पहला मेनू बनाया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देन जनरल ऑपरेशंस, देन से फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस,
ऐसे करके आपने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो वेट द यूजर इज गोइंग टू एंटर चॉइस 1, देन एक और मेनू खुलेगा, उसके अंदर में आपने पहला ऑप्शन था अरिथमेटिक ऑपरेटर का, तो पहला ऑप्शन खुलेगा, उसमें 4-5 ऑप्शंस होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड, और फिर से चॉइस वो पूछेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द यूजर द फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड। जिनको जिनको जितना समझ में आया उसके हिसाब से आप लोग ये प्रोग्राम मेरे को करके, और इफ एनीवन इज डूइंग ऑन कंप्यूटर वो प्रोग्राम एज वेल एज स्क्रीनशॉट ये दोनों भेजना है आपको, ठीक है। प्रोग्राम एज वेल एज स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट दैट यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप एज अर्ली एज पॉसिबल। और जिसको नहीं समझ में आया फिर मैं जब लाइव क्लासेस होंगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा।